So 9th and 10th formula, we get CP as shown here. See what will happen if I want only CP, तो ये CP को राइट हैंड साइड में ही रखो, ये 100 लेफ्ट में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 100 प्लस गेन परसेंट डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, और मल्टीप्लाइड बाय एसपी रहेगा. सो सीपी विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट multiplied by SP. Of course, this formula we will use when SP is given and gain percent is given. If these two things are given to us, then we use this formula of CP, cost price. And second formula will be this one. CP को right में ही रखो, 100 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 100 न्यूमरेटर में जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट पूरा न्यूमरेटर लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद डिनोमिनेटर में जाएगा. So it will become 100 upon 100 minus loss percent multiplied by SP. तो इससे क्या बता रहा हूँ मैं, what am I trying to tell is कि आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने का जरूरत नहीं है. आप कोई भी 9th और 10th कोई भी दो फॉर्मूले याद रखो, वहां से आप सीपी का फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हैं. बाकी के टर्म्स को राइट लेफ्ट में शिफ्ट करके सीपी का फॉर्मूला जैसे हमने अभी लिखा वैसे आपको मिल जाएगा. So SP and loss percent should be given to us, then we can use this 12th formula. Sir, only one formula we should remember, sir. Because Sir, other एक ही formula अगर याद रखा तो भी दूसरे आ जाते हैं सर. हाँ तो भी आ जाएंगे, क्योंकि बचा हुआ जो है वो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं लेफ्ट में शिफ्ट करके राइट में शिफ्ट करके. ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले थे. अभी आपके डाउट्स लेते हैं. बहुत सिंपल है, सारे फॉर्मूले ही है, बस उनको अच्छे से यूज करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने हैं. Question number 2, sir. डाउट्स क्वेश्चन नंबर 2 बोलो बोलो अभी जो भी डाउट्स हैं. 10. 11, 11 12 13, 14. 15, 17, 15. 18, 16, 16, 19. 26, 22, 28. 24, 26, 24. 28, sir. 28 लिखा. Okay, Over. let us continue solving doubts. Please pay proper and full attention. I am recording lecture, but still you should attend you should listen very attentively. Second question. A shopkeeper sold an article for rupees 2090.42 approximately. Now whenever some things are sold approximately, that means in such questions they are not expecting from us exact answer, they are expecting approximate answer only. Okay, so a shopkeeper sold an article for rupees 2090.42. That means this is what, CP or SP? Yes. SP, Yes. This is ESP. Very good. So in this question, selling price is 2090.42 rupees. Next, what will be the percentage profit if we sold that article for rupees 2602.58? But rather than this SP, if you would have sold the same article for rupees 2602.58 rupees. Let us say this has SP1 and this has SP2, second selling price. तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस अगर इतना है
2090.42 approximately. And now what will be the percentage profit if we sold that article for rupees 2062.58? तो अभी इस केस में इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसे सोचना है कि देखो पहले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस रहेगा उस आर्टिकल का, ओके। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अभी हमें यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ऐसा है कि पहले उसने इतने प्राइस पे वो आर्टिकल बेचा है। शॉपकीपर हैड सोल्ड आर्टिकल with amount the SP1 was 2090.42. Now he will sell it with this much cost. तो जो पहला जो सेलिंग प्राइस था उसको हमें सीपी कंसीडर करके, कॉस्ट प्राइस कंसीडर करके, और ये जो दूसरा सेलिंग प्राइस है उसको एसपी कंसीडर करके हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन कंपेयर टू द ओरिजिनल इनिशियल सेलिंग प्राइस 1 के कंपैरिजन में कितना परसेंट प्रॉफिट होगा ऐसे पूछा गया, ठीक है। ये सबको समझा क्या, ये जो मैंने बताया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। So that means when I am telling here is SP1, it is playing the role of CP, and SP2 it is playing the role of SP. And now we want to find out profit percent. Profit percent का formula है profit upon CP Profit by CP into into 100. 100. Now to find out profit, we know the formula of profit is SP minus CP, okay, upon CP into 100. अभी प्रॉफिट निकालते वक्त हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज डालने होंगे। SP is 2602.58 minus 2090.42 upon CP, that is 2090.42, ओके। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन देखो 8 minus 2, ये चाहे तो आप वर्टिकली भी लिख सकते हैं, 2602.58 minus 2090.42, 8 minus 2 सर से उसका आंसर 512.16 आता है। 50, so 512.16 upon 2090.42, Point will cut. सॉरी into 100 लिखना भूल गया, ठीक है। पॉइंट कैन बी कैंसल्ड, 51216 upon 209042 into 100। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, इट में seem little bit lengthy but not so difficult also, you may have to simplify little bit, and approximate आंसर ही पूछा है, हमें एग्जैक्ट आंसर का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इतने बड़े नंबर्स हम आपको एमसीक्यूज में नहीं देंगे, मच मोर इजियर नंबर देंगे, फिर भी यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है। 100 से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मैंने 2 0 लगा दिए अपॉन 209042, ठीक है। अभी आपको ऐसे देखना है यहाँ पे कि एक्चुअली दिस इज हाउ मच, 51,21,600 and this is 2,09,42। अभी आप ही सोच सकते हैं कि 2 लाख और ये 51 लाख, देखो कंपेयर करो, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। 2 लाख एंड इट इज 51 लाख, 2 लाख का कितना टाइम्स 51 लाख आएगा, मतलब आप चाहे तो उसको 50 लाख ही कंसीडर करो, नीचे को 2 लाख कंसीडर, सो 25 टाइम्स, सो वी कैन से अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 25, दैट्स व्हाई ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। सर ऐसे उस इस क्वेश्चन डिवीजन को का सॉल्व करना। आंसर 24 पॉइंट Yes, yes. आ गया था।
यस एग्जैक्ट आंसर वो 24.5 कुछ तो आएगा, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस द एग्जैक्ट आंसर, इसलिए ये वर्ड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे यूज हुआ है. दे आर एक्सपेक्टिंग अप्रोक्सीमेट आंसर ओनली. ठीक है. सो प्लीज कंसिडर इट लाइक दिस. जब भी उसने सोल्ड एन आर्टिकल पहले बोला और बाद में फिर अलग दूसरा सेलिंग प्राइस दिया है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये याद रखना. अरे आपने हाथ ऊपर किया था बेटा, पूछो. हैज एवरीवन अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टोल्ड? Yes, sir. Understood. हाँ Yes, sir. Understood. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. Sir, question number 5. पहले 5. So question number 5. ठीक है. 5 फिफ्थ वन. नाउ in this question we may have to use even cross multiplication method. Okay, let us see. Fifth one, 100 oranges are bought at the rate of rupees 350 and ये solid नहीं है, sold है. यहाँ I को कट कर दो. And sold at the rate of rupees 48 per dozen. The percentage of profit or loss is. मतलब हमें प्रॉफिट लॉस या परसेंट लॉस, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पूछा गया. अभी हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बट स्टिल वी कैन एटलीस्ट से दैट what will be the based on price of one mango, sorry orange, we can say that we have whether we have got profit percent or loss percent. अभी यहाँ पे हमारा गोल क्या रहना चाहिए कि यहाँ 100 ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया है, रेट इज रुपीज 350, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना आएगा? 3.5. यस. देखो ऐसा समझने का ट्राई करो कि 100 ऑरेंज का कॉस्ट 350 दिया है, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट 3.5 रुपीज आएगा. ठीक है. वैसे ही they are bought means purchased, so this is CP for one orange. Same way, now they are sold at the rate of rupees 48 per dozen. तो अगर आप ही सोचो 48 रुपीज में 12 ऑरेंजेस सेल किए, तो फिर एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना आएगा? 4. 4. 4. वेरी गुड, वेरी गुड, 4. very nice. So that means SP of one orange is 4 rupees. ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि CP 3.5 रुपीज है एक ऑरेंज का, और SP एक ऑरेंज का 4 रुपीज है. बस इतना समझ में आया तो काफी है. बस नाउ यू कैन ऑल्सो से दैट सर SP is greater here, that's why we will surely have profit percent only. Profit. हाँ, so we will have to calculate the profit percentage only. तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें 100 ऑरेंज का कॉस्ट दिया था 350 रुपीज, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट हमें मिला 3.50 रुपीज. सो दैट मीन्स CP ऑफ वन ऑरेंज इज 3.5 रुपीज. सिमिलरली सेलिंग प्राइस के केस में उन्होंने बोला था कि रुपीज 48 पर डजन इतना कॉस्ट है, मतलब 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट 48 रुपीज आता है, तो वन ऑरेंज का कॉस्ट आएगा 4 रुपीज. दैट मीन्स SP विल बी 4 रुपीज. एंड बिकॉज SP is greater than CP, we can surely say that in this case there is profit. Profit of 0.5. Profit upon CP into 100. प्रॉफिट ऑन वन सॉरी ऑरेंज, मैंगो क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी अभी मैंगो का सीजन चल रहा है. प्रॉफिट है 0.5 रुपीज
अपॉन CP है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, that is 50 upon 35, correct? Sorry, Yes, sir. 5 upon 35 into 100, 5 1 जा 5 7 जा। देखो अभी 100/7% आंसर में है क्या, ऑप्शन में है क्या? यस सर, उसका हमें मतलब होल नंबर करके किया है। मतलब सर मिक्स फ्रैक्शन का उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बाद में 100/7 आता है। So 7 14 जा 98, so 14 as a whole 2/7%, and of course it is profit percent. यहाँ दो ऑप्शन सर दिए हैं। यहाँ पे डबल सर उन्होंने डबल दो ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे। हाँ सर, तो वो कौन सा ऑप्शन टिक करना है? दोनों? ठीक है, आप यहाँ पे यस सर। एक कोई भी ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, तो फर्स्ट वन को करेक्ट रखो और यहाँ 14 1/7 करो और उसको गलत कर दो। ओके सर। ओके सर। वेरी गुड, ऐसे प्रिंट मिस्टेक निकालो। आई फील वेरी हैप्पी टू सी लाइक दिस, दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द concepts very well. Next, So eighth. eighth one, okay. So हाँ, एक बार वो स्लाइड दिखाओ ना, 5th वाली। हाँ पूछो बेटा। सर वो आंसर ऑप्शन है ना थर्ड वन, तो उसमें 1,17,500 आंसर है ना, तो मेरा 1,07,500 आ रहा है आंसर। आप एक बार बेटा सॉल्यूशन में देख लो ना, उतना आंसर दिया है क्या? मे बी यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो सकता है। हाँ सर, सॉल्यूशन में 1,07,000 1,07,000 ही है। बस वही दिया है ना, इसका मतलब यहाँ वो टाइप राइटर वाले ने यहाँ 0 नहीं डाला होगा, यहाँ 0 कर दो फिर, ठीक है ना? इज इट यस ओके? सर। चला एक्सप्लेन इट सिद्धि। नो सर। ओके, वेरी गुड। सेकंड प्रिंट मिस्टेक निकाला, Sixth one also doubt. 6th, okay. A man buys a cycle for rupees 1400, sells it at a loss of 15%. What is the SP of cycle? So this is a direct formula now. हमें पूछा गया SP selling price और हमें क्या दिया हुआ है? Buys means it is cost price and sells it at a loss percent. Loss percent is given and CP is given. तो SP के दो फॉर्मूले हमने देखे थे, these two formulae. So whenever CP and loss percent is given, we use this 10th formula. SP is equal to directly 100 minus loss percent upon 100 into CP. Okay, so that you can use and do the calculations. So here CP is rupees 1400. आप रुपीस का सिंबल ऐसे भी निकाल सकते हैं जो आपके बुक में दिया रहता है. Then loss percent is given as 15%, and we are supposed to find out SP. So just now we have seen the formula of SP. It is 100 minus loss percent upon 100 into CP. 100 minus 15 upon 100 into CP, 1400. 0 0 cancel. 100 minus 15 is 85 into 14. 14 5 जा 70, carry 7, 0 लिख लिया. 14 8 जा how much? 1190. 112 plus 7 119. So rupees 1190. Option 3 is correct. समझ में आया बेटा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला Yes, था. sir. हाँ,
That's Sir, why you have next to question. remember all the formulae. Question number, कोई तो बोला बीच में अभी. 10 now, sir. Yes, now 10. When a commodity is sold for rupees 34.80, there is a loss of 2%. What is the cost price of commodity? बस सिंपल है ना. देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है और सीपी पूछा है, तो हमारे जो 11th और 12 लास्ट दो फॉर्मूले है उसमें हम सीपी निकालते हैं. तो सीपी का फॉर्मूला ये है, इसमें अगर हमें एसपी और गेन परसेंट दिया है तो ये 11th वाला यूज करो, और एसपी और लॉस परसेंट अगर दिया है so then we will have to use the 12th one. तो यहाँ पे हमें दिया है इस क्वेश्चन में एसपी. Sir, we will do this. यू कैन इजीली सॉल्व इट नाउ. ठीक है ना. ऑफ कोर्स मैंने ये फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, इसलिए मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा. तो अभी ये दो फॉर्मूले यूज करो अगर हमें सीपी पूछा गया, और याद रखना है जब एसपी और गेन परसेंट दिया है तो 11th वाला फॉर्मूला यूज करो, और एसपी और लॉस परसेंट दिया है तो 12th फॉर्मूला. सिंपल है. देखो अभी 100/100 माइनस लॉस इनटू एसपी. Shall we calculate? चलो आप भी कैलकुलेट Yes, sir. करो. CP is equal to 100/100 minus loss percent into SP. 100/100 minus loss percent is 2 into SP is 34.80. So 100/98, that is Sir, your 3480. voice is breaking. 3480/98. यस, चेक करो कितना आता है कैलकुलेशन. पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. पहले 2 से डिवाइड करो. 2 4 35.5. 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 1 जा 2 7 जा 4 0. 49 को 7 से डिवाइड किया और इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 carry 10. 7 7 2 जा 14 3. नो, पॉइंट में आएगा आंसर. Okay, calculations you can do that. I don't want to spend time on it. Next, 11 12 13 14. Let me tell the logic quickly. When a plot is sold for rupees 18,700, the owner loses 15%. Now at what price must be plot be sold? ये solid नहीं है, sold है, in order to gain 15%. See, अभी देखो हमें पूछा गया at what price the plot must be sold. Sold means selling price is asked. So if we are asked selling price is equal to question mark, and what is given, gain percent is given, that means we need to have CP first. अगर हमें CP पता है तो बस काम हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. खेलना है फॉर्मूले के साथ ही, बस हमें क्या चाहिए वो ढूंढ के निकालना है. तो अभी बचा क्वेश्चन सीपी कैसे निकालना. तो सीपी निकालने के लिए पहला लाइन हमें मदद करेगा. इन द फर्स्ट लाइन दे हैव गिवन एसपी एंड लॉस परसेंट. तो इन दोनों का यूज करके हम सीपी फाइंड आउट कर लेंगे, और वही सेम सीपी हम इस सेकंड केस में यूज करेंगे.
पहले केस में लॉस हुआ है, दूसरे केस में हमें प्रॉफिट चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड? सब लोगों को समझ में Yes, आया क्या, कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर. yes, sir. हाँ. So if you have understood the logic, let me write it down. So in the first case, हाँ बोलो. हाँ सर, 10th क्वेश्चन का आंसर 35.51 आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है. अच्छा, एक बार आप कैलकुलेटर पे भी करके देखो, उतना ही आ रहा है क्या? तो मेरा भी 35.5 है. ओके ओके, दैट मीन्स आंसर इज नॉट हाँ मैचिंग. सर, और मेरा फिर और सॉल्यूशन में कितना दिया है? सो 46.40. सो उन्होंने ना 100/75 into 34.80 लिया. 75, लेकिन 100 - 2 तो हाँ सर, 98. 75/100. तो फिर 75 लेना है, तो ये लॉस परसेंट सर हमें वहाँ पे 90 चाहिए ना. 25 लेना पड़ेगा. See if we take सर your voice is cracking. see if we take this as 25%. Yes, sir. Your voice is so breaking. If we take this loss percent as 25%, then you will get the correct answer. मुझे लगता है फिर ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोले आप 100/75 दिया है ना. 100/100 माइनस लॉस परसेंट 25 अगर लेते हैं तो फिर ये 75 आ जाएगा. So you can change this value, no problem. Very good, you have found out the mistake, read mistake. यहाँ पे 25 कर दो तो ऑप्शन सर 4 करेक्ट आएगा. ब्रेकिंग. Has everyone understood? Loss percent 2% के आपने क्या जगह बोला? लॉस परसेंट जो है यहाँ पे वो 2% के जगह 25% करो तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा. 25. हाँ, ये चेंज करना है, 2 के जगह 20. ठीक है, कंसेप्ट बदलते नहीं. हाँ सर अजय सर की लिंक. हाँ, क्वेश्चन में कितने भी मिस्टेक्स हो, कंसेप्ट कभी सर नहीं आपका बदलते. वॉइस सर राजेश क्लियर सर नहीं आ रहा. गए. Okay, so we will stop here today. Thank you all very much for joining. Remaining questions try to solve once again, and if still you have doubts ask. मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लूंगा, Okay, फिर sir. Bye, कल sir. पूछूंगा कि अगर डाउट के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं कि नहीं. थैंक यू, बाय. बाय सर. बाय बाय. बाय. बाय सर. बाय बाय. बाय सर. बाय बाय.